Good morning, everyone. Please tell your friends to join fast. Within 1 minute, I'm going to start. Okay, good morning, everyone. Now I'm starting. Yesterday, we have seen how to prepare aldehyde by using acyl chloride. Okay, now we will study here how to prepare aliphatic and aromatic ketones by using acyl chloride. Okay, am I audible to everybody? So we will Yes, study here ma'am. preparation number. ठीक है, this is another. क्या नंबर है preparation का? थर्ड ना? थर्ड के फोर्थ? चलो नंबर तुम लोग डाल दो, मुझे नहीं पता नंबर. Preparation of ketones. अभी ketones आया दिमाग में तो कौन सा ग्रुप आना चाहिए? C डबल बॉन्ड O. ठीक है? Ketones from acyl chloride. ठीक है? That is the preparation of ketones from acyl chloride. अब ये जो है, it is not a direct method. We are going to do over here indirect method. Directly it is impossible to form. ठीक है? So I will take over here RMgX. Can anybody tell me what is RMgX? Alkyl magnesium halide. क्या बोलते हैं इसको? कौन सा Grignard reagent है ये? reagent. Very good, perfect answer. This is your Grignard reagent. तो बच्चों, first of all you have to treat it with calcium chloride. ठीक है? When you treat it with the calcium chloride, it will give you R2CD. ये है आपका Grignard reagent. GR लिख देती हूँ यहाँ पे. And this is your alkyl magnesium halide. ठीक है? और इसका नाम क्या आ जाएगा? This is called as dialkyl cadmium. It is called as dialkyl cadmium. ठीक है? R2 है तो इसने dialkyl लिखा. Plus there will be an extra part which is MgXCl. ये हो गया extra part. अभी मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है. Now what I will do, I will take my acyl chloride. This is acyl chloride, RCOCl. This is my actual acyl chloride. ठीक है? When it is treated with this part, alkyl dialkyl cadmium, देखो कैसे reaction हो रहा है. It will give you 2 molecules of R dash C double bond O R. ये हो गया R dash C double bond O R. अब क्या बचा यहाँ पर अपने पास? CdCl2. It will come out. So this is your ketone. ठीक है? Like that indirectly you can prepare. So हर बार आपको ये first step लिखने की जरूरत नहीं है. Directly you can start with the step number 2 as well. Again I'm repeating. We have over here Grignard reagent RMgX plus cadmium chloride के साथ treat करो. It will give you dialkyl cadmium. This is the main part. This is treated with acyl chloride. ठीक है? You will get 2 molecules of ketone and CdCl2. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. इसकी जगह पर हम ले लेते हैं अभी ये 2 था, 2 मॉलिक्यूल था. बैलेंस नहीं किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 molecules of CH3 C double bond O Cl. It is called as acetyl chloride. When it is treated with CH3 twice CD. अभी क्या बोला था? डाइअल्काइल कैडमियम. तो इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल कैडमियम. Am I right? It is called as dimethyl cadmium. चलो, क्या प्रोडक्ट आया था? 2R डैश C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2R का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 plus CD
sealed. This is called as propanone. What is its common name? It is your acetone as well. समझा? एकदम easy है. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. I will take over here benzoyl chloride, 2 molecules of C6H5 C double bond OCl plus हम इसे ट्रीट करेंगे वापस से डाई मिथाइल कैडमियम के साथ. क्या हो जाएगा? 2 molecules of C6H5 C double bond OCH3 plus CdCl2. ये देखो क्या आ गया इधर पे. दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड. ठीक है, इसका नाम क्या है? ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा एक्चुअली में ऐसा है ना, डबल बॉन्ड और CH3. इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन. ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन या फिर मिथाइल बेंजाइल कीटोन और बेंजाइल मिथाइल कीटोन, ऐसे भी नाम है इसका. समझा सबको? हाउ टू प्रिपेयर दैट. ये हो गया आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक फ्रॉम असाइल क्लोराइड. क्लियर? यस मैम. हाँ, चलो लिखो फटाफट, इतना कॉपी करो. कुछ नहीं समझा होगा तो मुझे पूछो प्लीज. हाँ, फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग. तो हर बार आपको ये फर्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डाइअल्काइल कैडमियम कैसे आया. दैट्स इट. फिर ये आपका जनरल रिएक्शन है. एक बार ये आपको जनरल रिएक्शन समझेगा तो आर की जगह पर कुछ भी रखो एंड यू विल गेट योर आंसर्स. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एक मिनट रुको, मैं जरा फैन स्लो करके आती हूँ, पेज बहुत उड़ रहा है. एक मिनट ना बच्चों, तब तक आप लोग लिखो ऊपर का पार्ट. जस्ट 1 सेकेंड. चलो लिखो फटाफट से. ऊपर करती हूँ कैमरा. फास्ट फास्ट कॉपी करो. ठीक है, दिख रहा है अच्छे से पेज? कुछ भी नहीं समझा होगा तो पूछो. हाँ, बहुत सारे रिएक्शंस है ये चैप्टर में. देयर आर सो मेनी नेम रिएक्शंस. तो एक सेपरेट बुक बनाना नेम रिएक्शन के लिए. अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया रोजनमंड रिएक्शन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन रिएक्शन. समझा? तो ऐसे आप लोग अलग अलग एक छोटा सा बुक बनाओ 50 पेज का, और उसमें सारे नेम रिएक्शन लिखते जाना. तो जितने चारों चैप्टर्स में नेम रिएक्शंस है, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट नेम, वो लिख दो. और उसके ऊपर आते हैं हमेशा क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से. अभी जैसे फ्रिडल क्राफ्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स. ये सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मैंने ड्रॉ किया. इट इज एग्जैक्टली सेम. C6H5 की जगह पर आई हैव रिटन ओवर हियर एरोमेटिक रिंग बेंजोइल क्लोराइड. एकदम इजी रिएक्शन है. किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क. शाम को आप लोग का 8 बजे फिजिक्स का लेक्चर है क्या? यस. अच्छा, तो फिर मेरा लेक्चर नहीं होगा फिर, क्योंकि सर ने डाल दिया ना. ठीक है, चलो जाने दो, कर लेती है ना. शायद सर को पता नहीं होगा, एक्चुअली मैंने बोला ही नहीं था उनको. कैमरा थोड़ा ऊपर. हाँ ओके. दिखेगा नहीं बच्चा, बहुत ऊपर किया तो ब्लर दिखेगा. दिख रहा है ठीक से? ओके ठीक है. अच्छे से समझ के लिखो. हाँ, मेरे सब पूरा प्रेपरेशन हो जाएगा ना, तो सिर्फ प्रेपरेशन के ऊपर एक टेस्ट लूंगी, फिर ही आगे पढ़ाऊंगी.
फिर आपको प्रॉपर्टीज सिखाऊंगी, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो जब ये अल्डिहाइड कीटोन्स के प्रेपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो समझ के पढ़ो, ताकि पढ़ने के टाइम पे आपको समझ में आए। ओके, डन। If you are done, please write down done in the chat box. ओके, चलो अभी आगे बढ़े। अभी हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड ओनली बट बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन सा, सॉरी दिस वाज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग अभी पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। ये आपको पता भी होगा, खाली रिवीजन है। ऑलरेडी यू हैव डन सो मेनी टाइम्स इन द 11th स्टैंडर्ड एज वेल। चलो, next is preparation of aromatic ketones by using Friedel-Crafts acylation. देखो heading, preparation of aromatic ketones by using Friedel-Crafts acylation. ठीक है, now see what I will do. I will take over here a benzene. ठीक है, benzene ले लिया। I am going to treat it with CH3 C double bond O Cl. This is your acetyl chloride. अभी आपने किया ना असाइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज योर बेंजीन। अभी ध्यान से देखो क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आई नीड ओवर हियर अनहाइड्रस AlCl3। आपने पूरा रिएक्शन सही लिखा और ये लिखना भूल गए तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नाउ सी बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई हैव Cl हियर, H है ना यहाँ पे, करेक्ट। आई हैव H ओवर हियर, तो ये क्या होगा, ये H चला जाएगा Cl के साथ और आपको यहाँ पर मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज यहाँ पे आ गया तो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ये क्या हो गया, एसीटोफिनॉल। ये समझा सबको, कैसे ऐड किया, COCH3 इधर पे ऐड कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। कल ही मैंने बताया था व्हाट इज असाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR। ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड OR, इस ग्रुप को कहा जाता है असाइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया एक रिएक्शन। दूसरा, I can also treat a benzene plus CH3 C double bond O C double bond O CH3। इसका नाम क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, वापस से यहाँ पे H है, ये H निकल जाएगा इन सब के साथ, क्या बन गया इधर CH3COOH, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एसिटोफिनॉल, मतलब असाइल ग्रुप आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH, दिस इज अगेन योर एसिटोफिनॉल। देखो, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सबके नाम अगर प्रॉपरली लिखा तो आपने डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखा तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को मार्क्स नहीं है, मार्क्स है आपके रिएक्शन को, हाउ यू आर राइटिंग। तो अगर आपने प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखा, टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स, बट ऑब्वियस। समझा सबको। फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन से मेन पार्ट तो यही है, मैंने खाली आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड वाला भी। क्लियर एवरीबॉडी, दिस H विल गो विद द Cl। और ये अच्छा, अगर सपोज ऐसा होता, हाँ सपोज यहाँ पर फिनॉल होता और उसके बाद अगर हम ऐड करते CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तब है ना
ये सीएल दो जगह पर जाता है, एक ऑर्थो पे जाता है और एक पैरा पे जाता है। ये ग्रुप पता है ना, मेन ग्रुप आपका कीटोन ही होता, बट एक कहाँ जाता, ऑर्थो पे, एक जाता पैरा पे। आया समझ में मैंने क्या बोला? अनहाइड्रस AlCl3। तो कैसे होगा, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे जाएगा। सो ऑर्थो वाला विल बी लाइक दिस, इट इज OH COCH3, OH COCH3 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी अगेन OH और नीचे हो जाएगा COCH3 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। आया समझ में, यस और नो? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, उसका नाम क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट and this is your minor product. What I said, if you are having phenol over here, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन नहीं है, यहाँ पे phenol भी है, तो here this COCH3 will go to 2 different positions. एक जाएगा ऑर्थो पे, दूसरा जाएगा पैरा पे, because I have H over here also and H over here also. तो this time it will form ortho and para both the products. इस केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया क्योंकि बेंजीन लिया था मैंने सिंपल, so it will give you acetophenone directly. But if I'm using phenol or any other thing like chlorine, chlorobenzene and all that, so you will get ortho and para both the products. ठीक है? So in that case, which one will be the major product? Your para वाला will be the major product and ortho will be the smaller, that is a minor product. तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2, क्योंकि प्रेफरेंस किसको मिलेगा, कीटोन को मिलेगा ना, तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। और ये देखो 1 2 3 4, तो इट इज 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। क्लियर? क्लियर दिस पार्ट? एनी क्वेश्चंस? Am I very clear to everybody? Okay. यस मैम। हाँ, लिखो चलो। सब क्वेश्चंस पे पूछने वाले, लास्ट के 10 मिनट्स आपका ओरल होने वाला है, इसलिए सब ध्यान से रिएजेंट्स, रिएक्शंस, प्रोडक्ट सब ठीक से देखो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि याद करो, बट ठीक से देखो। मिस वो फर्स्ट रिएक्शन में HCl अलग से मिलेगा ना? हाँ, ये HCl निकला ना, HCl, ये H और ये Cl निकल गया बाहर और ये ग्रुप इधर ऐड हो गया। मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एसिटिक एसिड, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑर्थो एंड पैरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन HCl। तो इसको ना भाव ही नहीं देता है कोई भी, सिर्फ ऑर्थो और पैरा लिखते हैं। ऑर्थो क्यों बोला, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट है, एडजेसेंट है, और यहाँ पे ऑपोजिट है, दैट इज व्हाट इज पैरा। तो ऑर्थो मतलब 2, पैरा मतलब 4। समझा? अच्छे से लिखो एकदम। हो जाएगा तो बोलो। हाँ बच्चों, आराम से समझ के लिखो। प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक। We are on page number 261. Preparation है till page number 264. ठीक है?
जैसे ही प्रेपरेशन हो जाएगा आपका टेस्ट होगा पहले। और फिर ही मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सिखाऊंगी। सारे नेम रिएक्शंस का सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। हो गया क्या बच्चों? असाइल ग्रुप क्या है वो समझ में आ गया ना, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं। COCH3 इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप। तो ऐसे सुनते 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 आपको याद हो जाएगा कि असाइल ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। मैम ये लास्ट रिएक्शन समझाओ ना। हाँ ये वाला अल्कोहल फिनॉल वाला। ये ओके सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिनॉल। अभी यहाँ पे देखो फर्क क्या है, ये सिर्फ बेंजीन था और ये फिनॉल है, तो फिनॉल यहाँ पे स्पेस ब्लॉक कर देगा। तो व्हेन देयर इज अ फिनॉल, आपका ये जो ग्रुप होता है ना असाइल ग्रुप, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। एंड व्हेन इट इज जस्ट अ बेंजीन तो कहीं पे भी जा सकता है ना, करेक्ट। देयर इज नो ऑर्थो एंड पैरा अंटिल अनलेस देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप। ऑर्थो और पैरा के लिए वी नीड टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दिस इज H एंड दिस इज आल्सो H, दिस इज ऑर्थो पोजीशन एडजेसेंट टू द फंक्शनल। अभी फिलहाल के लिए फंक्शनल ग्रुप तो फिनॉल है, तो ये दोनों इसका एडजेसेंट है, मतलब इट इज ऑर्थो। ये दोनों मेटा और ऑपोजिट वाला पैरा। तो ये H क्या करेगा, यहाँ से HCl निकालेगा, एक बार ऑर्थो पे गया गया COCH3, सेकेंड टाइम इट विल गो टू पैरा पोजिशन, अंडरस्टूड। तो अभी इसका नाम कैसे आएगा, अभी ये डोमिनेट हो गया ना, बिकॉज कीटोन इज मोर स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप देन अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या बन जाएगा अभी, फिनॉल क्या बन जाएगा अभी OH। तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। और इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4, सो इट इज 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा स्टेबल कौन है, पैरा। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप दो हैं, तो इन दोनों में आपस में रिपल्शन नहीं होता, देयर इज नो रिपल्शन। इन दिस केस दे आर वेरी क्लोज, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप्स का एक दूसरे को आपस में ढकेलना, ठीक है। सो इट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट इज व्हाई इट इज अ माइनर प्रोडक्ट एंड अनस्टेबल, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस तो बच्चों? सेकंड रिएक्शन में आपने ये O को भी क्यों लिया है उस सर्कल में सेकंड में? इसको मुझे किस में इंटरेस्ट है, C डबल बॉन्ड और CH3 में, तो ये सब एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना। हो गया कि नहीं बोलो, मुझे क्या इंटरेस्ट था, सिर्फ C डबल बॉन्ड हो इसमें ही इंटरेस्ट था, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये H के साथ चला जाएगा, इधर पे क्या बनाया देखो, एसिटिक एसिड हाँ बनाया, मिस समझा। CH3COOH। समझा, जो इंटरेस्टेड है वही पार्ट लेंगे ना। ये देखो मैं किस में इंटरेस्ट हूँ, इस पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे Cl से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे भी मुझे Cl से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इससे लेना देना है। तो मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया बाहर HCl के फॉर्म में। क्लियर? ये कौन सा रिएक्शन था, अपना फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। कल आपने पढ़ा था रोजनमंड रिएक्शन, याद है, रोजनमंड रिडक्शन। चलो शुड आई प्रोसीड नाउ, हो गया सबका लिख के? नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज नाइट्राइल? नाइट्राइल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? व्हाट डू मीन बाय नाइट्राइल्स? नाइट्राइट्स नहीं है, नाइट्राइल्स, LE वाला। एक मिनट, प्रेपरेशन और इसमें साइनो होता है। यस मैम। साइनाइड, साइनाइड, हाँ साइनाइड। बराबर बराबर, करेक्ट। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, वेरी गुड, फ्रॉम नाइट्राइल्स। याद रखना कि साइनाइड मतलब नाइट्राइल्स ही होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। आप बोलोगे मिस ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 5, 1 2 3 और एक लोन पेयर रहता है इसके पास। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, तो इट इज 1 2 3 4, दैट इज व्हाट इज अ ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर?
अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू अ रिडक्शन. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. अगेन इट इज अ नेम रिएक्शन, सो इसको कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन. ठीक है, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन बिकॉज इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज स्टीफन. उसने क्या बोला, ही सेड दैट यू टेक अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल. सपोज इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइल. मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगी, एग्जाम्पल वाला आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने H ऐड कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन in the presence of, this is very very important, stannous chloride and HCl. stannous मतलब टिन. टिन कौन से ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप एलिमेंट है. ठीक है, stannous chloride and HCl, तो ये देता है रिडक्शन. दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. these two are your reducing agent HCl. अब क्या होगा बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, देखो ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड है और मेरे पास 2 H है. एक H कार्बन के पास जाएगा, एक H नाइट्रोजन के पास जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड. तो क्या हो गया, अभी देखो RCH डबल बॉन्ड NH. इतना क्लियर, यस और नो? यस मैम. हाँ, इसको बोलते हैं इमाइन, इसको कहा जाता है इमाइन. और ये डॉट HCl भी इधर ही आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आयनिक इक्विलिब्रियम में H+ आयंस नहीं होता है, हमेशा हाइड्रोनियम आयन होता है. दैट इज हाइड्रोलिसिस वी आर गोइंग टू डू. तो ये सब ग्रुप को बाहर निकाल दो. क्या हो जाएगा अभी, RCHO. सिर्फ क्या ऐड किया मैंने, ये सबको बाहर निकाल दिया, O ऐड किया, प्लस अभी क्या हो जाएगा मेरे पास NH4Cl. इधर पे 2 H था, इधर पे 2 H था, क्या आ गया वो NH4Cl. तो बाय प्रोडक्ट जाने दो. आई हैव गॉट ओवर हियर एल्डिहाइड. आया समझ में? सो व्हाट इज स्टीफन मैम वो रिएक्शन, अभी ध्यान से सुनो. हाँ, NH4Cl से क्या है? क्या NH4Cl कहाँ से है? ये देखो ना, यहाँ पे क्या था, NH था और यहाँ पे HCl था, तो यहाँ पे 2 H था, यहाँ से 2 H आएगा, NH4Cl, और ये एसिडिक मीडियम में 1 H रह जाता है, तो इट विल रिमेन एज इट इज. ये जो CH था, इसकी जगह पर ये ऑक्सीजन इधर आ गया, इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा, 3. ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन होता है हाइड्रोलिसिस में हमेशा. वी आर नॉट पुटिंग हियर H+ आयंस और OH- आयंस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ आके अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा. ये आपका बाय तो प्रोडक्ट. फिर एक H रह जाएगा ना. एक H रह जाएगा, वो एसिडिक मीडियम में रहेगा, क्योंकि देखो ना HCl भी था ना इधर पे, तो इट विल एक्ट एज एन एसिडिक. तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है. एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब जहां पर एसिड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट आल्सो. तो ये आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट है. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. नाइट्राइल्स रिड्यूस टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. आप लोग लिखोगे खुद से, इसे मैं रिपीट कर रही हूँ. नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स by stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on further hydrolysis gives a corresponding aldehyde. This reaction is known as Stephen reaction. वापस से बोलती हूँ, nitriles are reduced to imine hydrochloride. कैसे? By using stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on further hydrolysis gives corresponding aldehyde. This reaction is known as Stephen reaction. Clear हो गया? कौन रिपीट करेगा? दिवेश रिपीट करो, क्या था? What is Stephen reaction? Alkyl nitrile will reduce to amine hydrochloride in the presence of SnCl2 and HCl, and on further hydrolysis it will give corresponding aldehyde and remaining compound. That's Whatever okay. it is. Correct. So it is called as Stephen reaction. Very good. Yash, repeat. कौन सा मिस यही पूरा. What is Stephen मिस reaction? कौन सा यश हुई. alkyl nitrile will reduce to imine hydrochloride and Very on good. further
In the in the presence presence of of SnCl2 and HCl, and on further hydrolysis it will give corresponding aldehyde, and this reaction is known as Stephen reaction. वेरी गुड. चलो गर्ल्स में कौन करेगा रिपीट? साक्षी. मैम ये लिखना है ना? हाँ लिखना है. पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है. साक्षी प्लीज रिपीट. व्हाट Alkyl इज स्टीफन रिएक्शन? nitrate will reduce to give amine hydrochloride in the presence of an SnCl2 and HCl. Well, further hydrolysis, the product which we get is aldehyde. The main product we get is aldehyde, and the remaining component. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन. वेरी गुड. चलो लिखो सब लोग. सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम और कुछ अलग लोगों के नाम बोलूंगी जो डेफिनेशन रिपीट करेंगे. ठीक है? चलो पहले लिखो फटाफट से. हेडिंग लिखो, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल. अभी पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं तुम लोग को एग्जांपल्स दूंगी, वो तुम लोग सॉल्व करना. ठीक है? राइट डाउन स्टीफन रिएक्शन. ऐसे उसको कलर पेन से लिखा करो नेम रिएक्शंस. ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन. चलो लिखो. Nitriles are reduced to imine hydrochloride. Nitriles are reduced to imine hydrochloride in the presence of stannous chloride and HCl. In the presence of stannous chloride and HCl, followed by hydrolysis, to give corresponding aldehyde. This reaction is known as Stephen reaction. चलो अब ये पहले कॉपी करो और मैं नीचे क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम लोग सॉल्व करो. ठीक है? CH3 C triple bond N plus 2H in presence of SnCl2 HCl. What is A? This on hydrolysis gives you B. इसका नाम क्या है? इथेन नाइट्राइल. इसके बाद है बेंजीन रिंग, बेंजोसाइनाइड, बेंजोनाइट्राइल और बेंजोसाइनाइड. जो चाहिए वो लिखो. प्लस 2H in the presence of SnCl2 and HCl. याद रखना ये स्टीफन रिएजेंट है, गड़बड़ाना मत. एग्जाम में कभी कभार ना आपको सब दे देंगे, पूरा रिएक्शन A B सब देंगे और पूछेंगे नेम दिस रिएक्शन. तो आपको देख के समझ में आना चाहिए स्टीफन है. अनहाइड्रस AlCl3 दिखा तो फुरल क्राफ्ट रिएक्शन है. ऐसे रिएजेंट्स देख के आपको पता चलना चाहिए. आएगा लिखने को इतना बच्चों? यस मैम. हाँ. अभी उन्होंने क्या बोला पता है? इसकी जगह पर ना हम लोग एक और भी यूज कर सकते हैं. रुको बताती हूँ. दूसरा एक रिएक्शन दिया हुआ है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N. मतलब ये भी साइनाइड ही है, खाली हम लोग इसकी जगह पर, किसकी जगह पर? स्टैनस क्लोराइड की जगह पर यूज कर सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है? इसको क्या लिखते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर इसको कैसा लिखा जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड
आइसोब्यूटाइल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सेम ही है, सेम ही है ये। एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा पता है, ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये ग्रुप साइनाइड वाला ग्रुप डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। What is the name of this compound? It is pent3ene, पूरा इन लिखेंगे, नाइट्राइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, pent3enal, है ना, 1 2 3 4 5। समझा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे भी क्या हुआ देखो ना, साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया। इस अभी रिएक्शन देखो ऐसे भी दे सकते हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लिख दिया SnCl2 HCl, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी लिख दिया। तो आप क्या करोगे, साइनाइड को डायरेक्टली एल्डिहाइड बना देने का, खत्म रिएक्शन। ये सब झंझट सब करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या बोला मैंने, कैसे टाइप यस के मिस, क्वेश्चंस आते हैं। वो ये सेकंड स्टेप नहीं हाँ करने की जरूरत ना फिर। हाँ, सेकेंड स्टेप अभी देखो ना, इधर पे लिख दिया ना डायरेक्टली, तो मैं इधर पे डायरेक्ट लिख दूंगी। मुझे पता है ना कि हाइड्रोलिसिस के बाद साइनाइड ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। यस दिवेश, करेक्ट आंसर है इसका, वेरी गुड, दिस इज राइट। अभी ये क्यों लिखा है पता है, कभी कभार ना MCQs में पूछते हैं व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हिच यू हैव गॉट, तो इट इज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके लिए ये लिखा। अदरवाइज अगर ऐसे दिया रहेगा SnCl2 और फिर क्या बोलेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये समझा, इसका नाम क्या है, इसका मैं लिख के देती हूँ नाम, रुक जाओ बाद में, इधर लिखू नीचे, DI, इसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डाई बाई हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑल्टरनेट मेथड है जिसकी वजह से आपको ज्यादा फास्ट प्रोडक्ट मिलता है। और इसका यूज करने का एक फायदा क्या है पता है, कि ये आपके डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, इट विल कीप योर डबल बॉन्ड एज इट इज। नहीं तो क्या होगा, बाकी अगर आपने ये यूज किया तो इट विल रिड्यूस योर डबल बॉन्ड ऑल्सो, बट दिस विल नॉट रिड्यूस योर डबल बॉन्ड। मैं बताती हूँ इसका एडवांटेज, इतना लिख लो पहले, समझ रहे हैं ना बच्चों, एम आई गोइंग वेरी फास्ट, आई होप एवरीवन इज गेटिंग प्रॉपर आंसर। CH3 CHO NH4 Cl, बराबर है प्रगति, वेरी गुड। तुम लोग इतना पूरा रिएक्शन मत लिखो रे, तुम लोग नाम बता दो मुझे चलेगा, IUPAC नेम भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, जैसे कि इथेनॉल आ गया या प्रोपेनॉल आ गया, व्हाटएवर। समझ रहे हैं सबको, एनी क्वेश्चंस? आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। यस बराबर है, करेक्ट आंसर कशिश, पहले वाले का आंसर आएगा इथेनॉल। देखो ना, मेरे को यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं, ओरली मुझे पता है कि ये चेंज होने वाला है किसमें, CH3 CHO में, सो दिस इज माय इथेनॉल। अभी तुम लोग को इतना IUPAC सिखाया है, अब उसका कुछ तो इस्तेमाल करो। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली CHO में, तो क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड, है ना, करेक्ट ना, बेंजीन रिंग CHO हो जाएगा डायरेक्ट, बेंजाल्डिहाइड। नाम लिखना सबका, सबका नाम लिखना, नहीं तो फिर 0 मार्क्स मिलेगा। मैम ये बीच में के स्टेप्स अगर नहीं लिखे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो अगर आपको डायरेक्टली स्टीफन रिएक्शन डिटेल में पूछा ना, CHO डाल के उसको प्रूव कर देंगे ना कि हाँ ये अल्डिहाइड है। चलेगा, यस यस दैट इज करेक्ट। बट मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, अभी जैसे स्टीफन रिएक्शन पूछा, ठीक है, they will ask you to write on the Stephen reaction, write a short note on Stephen reaction,
तो वहाँ पे स्टेप थोड़ा सा लंबा करने के लिए लिख देना, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सी ओके द मैम। थिंग इज इन द ऑर्गेनिक के अभी देखो ना, यहाँ पे मार्क्स काट देगी ना टीचर, बोलेगी अरे बीच का रिएक्शन नहीं लिखा अगर स्टीफन रिएक्शन पूछा तो, क्योंकि हम लोग ने स्टेटमेंट में बोला है ना कि इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है और वो हाइड्रोलिसिस से अपने को एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर ऐसा आया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसमें स्किप मार दिया तो भी चलेगा। लेकिन देखने का भी, जैसे उन्होंने ए और बी दिया तो ए लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, बराबर। अभी यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में लिखा तो आप डायरेक्टली लिखोगे, देखो यहाँ पे एक ही स्टेप में लिख दिया तो डायरेक्टली यू हैव कन्वर्टेड, समझा। तो थोड़ा स्मार्टली आंसर करने का, कहाँ पे कौन सा स्टेप लिखना है, कहाँ पे कौन सा। अभी मैंने यहाँ पे ए एंड बी दिया, मतलब ए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसका 1 मार्क्स रहेगा, इसका 1 मार्क्स रहेगा। बट अगर मैंने ऐसे दे दिया डायरेक्टली तो इस रिएक्शन को 1 ही मार्क्स है, डायरेक्टली 2 मार्क्स है। अंडरस्टूड? ये आपका डी है। 2 में ए और बी क्या है, ये रहा बी, और ए क्या आएगा, बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, इमाइन वाला। अंडरस्टूड श्रुति? दिस इज A, दिस इज B। ये इसका फुल फॉर्म है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अंडरस्टूड? किसको नहीं समझ रहा है प्लीज पूछो, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मिल्टी बैलेट वाला नहीं समझ। कुछ करना नहीं है, उन्होंने क्या बोला है कि इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज D by H also, and this will reduce only or this bond cyanide to aldehyde. It will not affect anything to this double bond or extra triple bond. तो ये इस रिएक्शन का एडवांटेज है, समझा। अगर मैं ये रिएक्शन यूज करती और यहाँ पर ये वाला अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज करती तो ये डबल बॉन्ड भी क्या बन जाता, पता है क्या, सिंगल बॉन्ड बन जाता। मुझे मेरा डबल बॉन्ड चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको हटा के D बाय हाइड्रोजन यूज करूंगी, हाइड्राइड यूज करूंगी। तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस ओनली साइनाइड, नॉट योर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दैट इज द मैम तो एडवांटेज फिर ऑफ दिस एग्जाम में रिएक्शन। ऐसे ही लिखना है क्या कि ये दिया है? हाँ हाँ यस यस, हाँ ये ऐसे लिखो ना डायरेक्टली। एक्चुअली दोनों सेम ही है, देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। पर कभी पूछा आपको विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द स्टीफन रिएक्शन which is not reducing double or triple bond, तो आपको फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए ना, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझा। देखो ये एक पैराग्राफ पे ना 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 10 क्वेश्चन, एक रिएक्शन पे 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिखाती हूँ मैं इसका एडवांटेज। हो गया लिख के, ये इतना हो गया तो बोलो पहले। ओके चलो लिखो। एडवांटेज ऑफ D by hydride is that, एडवांटेज ऑफ D by hydride, अभी समझा ना D by hydride क्या है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, is that it will not reduce double or triple bonds present in the same molecule, it will only reduce cyanide to aldehyde, it will only reduce cyanide to aldehyde। ठीक है, इसको एकदम स्टार मार्क करके रखना। चलो आगे बढ़े, किसी को कुछ डाउट है? अब तक 3 रिएक्शन किया हमने, कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर कीटोन्स बाय यूजिंग एलिफैटिक असाइल क्लोराइड, फिर फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्टीफन रिएक्शन देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। नाउ वी विल प्रिपेयर
ketones, preparation of ketones from nitriles. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन. अभी इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे. ठीक है, चलो डायरेक्टली एग्जांपल के साथ ही दिया हुआ है तो मैं वैसे ही ले लेती हूँ. CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज योर इथेन नाइट्राइल. वाई इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, प्लस अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वी विल राइट डाउन हियर CH3MgBr, CH3MgCl. दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट? ड्राई ईथर, क्योंकि ये रिएक्शन पानी की मौजूदगी में नहीं हो सकता है. आपको क्या करना है, हमेशा ड्राई ईथर यूज करना. अभी कैसे करने का देखो, कार्बन विल गो टू कार्बन, नॉन कार्बन विल गो टू नॉन कार्बन. ये मैंने रटवाया है आपको 11th स्टैंडर्ड से ही. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन विल गो टू कार्बन, नॉन कार्बन विल गो टू नॉन कार्बन. देखो अभी कैसे हो गया रिएक्शन. CH3C CH3 कार्बन के पास चला गया, ये वाला. ये समझा सबको? यस और नो, फटाफट रिप्लाई करो. Yes, miss. हाँ, अभी ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. ये नॉन कार्बन है, नॉन कार्बन के पास जाएगा NMgCl. इतना क्लियर? चलो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करने का. हमेशा याद रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हाइड्रोलिसिस करने का, तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा बाहर. इसको हकाल दो, इट विल बिकम CH3 डबल बॉन्ड O. इसके बाद जो भी आया वो सब बाय प्रोडक्ट है. तो क्या बनाएगा पहले तो पता है, पहले अमोनिया बनाएगा NH3 प्लस. ठीक है, NH3 हो गया प्लस, और ये दूसरा प्रोडक्ट बनता है MgClOH. तो मुझे किस में इंटरेस्ट है? इसमें. दिस इज माय एसीटोन. मतलब ये जो भी दिख रहा है इसको निकालो, इसकी जगह पर O डालो, हो गया. इजी है. चलो मैं एक और रिएक्शन देती हूँ, तुम लोग करो. CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, अभी दे देती हूँ तुम लोग को मैं, चलो CH3 दे देती हूँ, MgBr. ठीक है, MgBr in presence of dry ether gives you A on hydrolysis gives you D. चलो ट्राई करो फटाफट. इसका IUPAC नेम लिखो, इसका लिखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिखो. कैसे आया देखो, ये इथेन नाइट्राइल बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4. क्या आएगा नाम इसका? ब्यूटेन नाइट्राइल. ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल आएगा. क्या सॉल्व करने को बच्चों? एक और देती हूँ, हाँ एक और देती हूँ. बेंजोसाइनाइड, बेंजोनाइट्राइल प्लस C6H5 MgBr. इसका नाम भी लिखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इसका भी नाम लिखो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. सबके नाम लिखना अच्छे से. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका नाम है आराम से लिखो, मुझे कोई घाई नहीं है. ये हो जाएगा, इसका नाम क्या आएगा? बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. चलो ट्राई करो, देखो आता है क्या. सी इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी को आए. ठीक है, नहीं आएगा तो आई विल टीच यू, डोंट वरी, वी आर हियर टू लर्न. एक ही बार में नहीं आएगा. See what I said, you are having here C triple bond N and this is your Grignard reagent. अभी इन दोनों के बीच में एडिशन होएगा, ट्रिपल बॉन्ड के बीच में. तो कार्बन विल गो टू कार्बन, आ गया कार्बन के पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड, हो गया. दिस इज नॉन कार्बन विल गो टू नॉन कार्बन, तो हो गया MgCl. You remove this, just put oxygen over here, this is your main product. ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल आर योर बाय प्रोडक्ट, दैट इज अमोनिया एंड MgCl2. तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये देखो, ये क्या ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ऐड होएगा ना. ठीक है, दिस इज कार्बन, कार्बन विल गो टू
carbon, non carbon will go to non carbon, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाद में ऐसे उसको बाहर निकाल के उसका कीटोन बनाने का है. Here also this is your carbon will go to carbon, this is non carbon will go to ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और जहाँ पे ये वाले ग्रुप दिखेंगे उसको हटा के ऑक्सीजन लगाने का. क्लियर नाउ हेली? हेलो, ओके. क्या फास्ट फास्ट टाइम जाता है रे. क्वेश्चंस लिख लो पहले, फिर मुझे आंसर बोलो एकदम फास्ट. सबके नाम लिखना, ठीक है. मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका तो मैंने लिख ही दिया, इसका लिखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्वेश्चन हो जाएगा तो बोलो आई विल कीप माय कैमरा डाउन, मैंने ऊपर पकड़ा हुआ है. फर्स्ट का आंसर हेक्सेनॉन से आएगा. हाँ 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 बराबर. तो ये CH3 के ऊपर ऐड होगा 1 2 3 4 5 हेक्सेनॉन के पेंटेनॉन. कन्हैया 5 कार्बन आएंगे ना, इधर डबल बॉन्ड लग जाएगा. 1 2 3 4 5 5. आएगी. पेंटेन 2 आएगा. बराबर, करेक्ट प्रियंका, वेरी गुड. पहले वाले का आंसर आएगा पेंटेन 2 ओन. वेरी गुड. देखो नहीं समझेगा ना ये तो टेंशन नहीं लेने का, ऊपर जो लिखा है ना जनरल रिएक्शन, उसका ट्रिक देखने का कैसे किया, तो आपको सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे. मीन्स वो बाय प्रोडक्ट हर एक में सेम आएगा ना. हाँ हाँ बराबर, वो सेम आएगा. अमोनिया सेम आएगा Mg, यहाँ पे Br आएगा और OH आएगा दोनों केस में. बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैंने A और B पूछा है, B+C+D नहीं पूछा है. क्वेश्चन समझो आप, अगर मैंने यहाँ पे B+C+D लिखा रहता तो मैं ये सब लिखती. मैंने क्या पूछा है, A एंड व्हाट इज द फाइनल B. हो गया. हाँ करेक्ट है दिवेश, वेरी गुड.
Second answer is correct. Very good, Kashish. चलो, आई एम हैप्पी कि आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं. पढ़ने के टाइम पर तुम लोग को बहुत इजी जाएगा. आया क्या बच्चों आंसर? कशिश, प्रोपेन कैसे आएगा बेटा? पेंटेन आएगा ना. कार्बन देखो कितना है, 5 हो जाएगा ना. अरे यार, एक तो मेरा स्टैंड है ना एकदम सड़ा हुआ हो गया है. देखो ना, इधर 1 2 3 4 इधर डबल बॉन्ड आएगा और CH3 एक ऊपर भी ऐड होएगा. तो CH3 CH2. हाँ हाँ, ओके ओके, टाइपिंग एरर आया क्या? ठीक है. डबल बॉन्ड O और इधर आएगा CH3. तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन. बराबर, करेक्ट. आया सबका आंसर? अनुष्का, मिस वो आंसर है बट उसका IUPAC नहीं पता. किसका? सेकंड वाले का? हाँ. कौन सा वाले का IUPAC नहीं पता? यश बोलो. मिस ये A और B का बोल रहा था. ये इसका तो कुछ लेना ही नहीं है. ये पेंटेन 2 ओन आया पहले वाले का. इसका आंसर है पेंटेन 2 ओन. देखो ना, 1 2 3 4 5. सो इट इज पेंटेन 2 ओन. इसका क्या आएगा? फाइनल प्रोडक्ट देखो ऐसा आएगा ना. ये हो गया बेंजीन रिंग. ठीक है. फिर इधर पे C, इधर पे क्या लिखा? C6H5 डबल बॉन्ड O. तो अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये भी बेंजीन रिंग है कि नहीं? बोलो ऐसे. प्रियंका, इज इट राइट? हाँ. है ना. तो इसका नाम क्या हो गया अभी? बेंजोफिनॉन. हाँ मिस ये था ना वो C6H5 है टेक्स्ट बुक ना. में. हाँ हाँ, हम लोगों ने इस पे भी किया था ना. इट इज बेंजोफिनॉन. इसलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया. आपके बुक में यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ था, तो मैंने एक जगह रिंग बनाया और एक जगह पर ऐसे ही दिया. अगर मैंने इसको ऐसे दिया रहता था डायरेक्टली, तो तुम लोग और कंफ्यूज जाते इसको कैसे ज्वाइन करने का. तो टेंशन नहीं लेने का, नीचे ज्वाइन कर देने का. खत्म. डबल बॉन्ड O. समझा? बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं करने का. क्लियर एवरीबॉडी नाउ? इसका नेम क्या है? राइट आया दोनों भी. वेरी गुड प्रगति. और किसको डाउट है इसमें, इस रिएक्शन में? कौन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्लियर एवरीवन? शुड आई प्रोसीड? एनी क्वेश्चंस? प्रशांत, कभी कुछ भी आंसर नहीं करता है प्रशांत. तन्वी भी कुछ ज्यादा बोलती नहीं है कभी. शिवम, समझ रहे हैं सब? थर्ड वाला मतलब कौन सा थर्ड वाला? बेंजीन का है ना. ये वाला हाँ. बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ऐसा है. फिनोन. ठीक है. नहीं समझेगा तो पूछो 2 बार 4 बार 6 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऐसे सीखो कि आप जब खुद से पढ़ो तो आपको समझ में आए कि कैसे आया था. फिर पढ़ने के बाद सारे टाइम पे कुछ समझेगा नहीं कौन सा कहाँ पे आया. इतना इजी नहीं है ये. अभी लग रहा है इजी, जब पढ़ने बैठोगे सब भूल जाओगे. ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी. Now we will go for the next reaction, preparation of aromatic aldehydes from hydrocarbons. ये दुनिया की सबसे सिंपल रिएक्शन है. डायरेक्टली जो मिथाइल ग्रुप रहेगा ना उसको एल्डिहाइड बना देने का, बस.
खाली रूट अलग अलग है, बाकी रिएक्शन एकदम सेम है। फाइनल प्रोडक्ट तीनों का भी सेम आएगा, मैं बताती हूँ। देखो, पहले देखो बाद में लिखो, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अभी आप देखना, हाँ, पहले मैं क्या लिख रही हूँ। मेरे पास क्या है ये, बोलो इसका नाम बोलो फटाक से। बोलो। बाप रे, इसमें इतना सोच रहे हो तो मेरे को तो सुसाइड ही करना चाहिए अभी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? CH3 इज कॉल्ड एज व्हिच ग्रुप? टॉलुइन। टोलुइन। और it is, हाँ, और या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। टोलुइन नहीं याद आ गया तो मिथाइल बेंजीन तो लिख सकते हो ना। देखो अभी क्या करना है, यहाँ पे खाली रिएजेंट यूज करना है। CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। कुछ लिखो मत, पहले मैं बताती हूँ। क्रोमाइल क्लोराइड लिया और उसमें CaCl2 डाला, ठीक है। मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा डायरेक्टली CH3 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CHO में, बेंजाल्डिहाइड हो गया। अभी दूसरा रूट देखो, हाँ दूसरा रूट सेम है, एकदम सेम है। आई विल टेक CH3 प्लस, यहाँ पे लिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड CO ट्वाइस O, टेम्परेचर 273 टू 283, मतलब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, एकदम ठंडे कंडीशन में करने का। वापस से क्या हो जाएगा आपका, ये जो मिथाइल ग्रुप है, मैंने अभी तक बीच वाले रिएक्शंस नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। पहला रूट देखो, रिएजेंट अलग है, प्रोडक्ट सेम है। दूसरा रूट देखो, रिएजेंट अलग है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, सेम ऐसा ही, हाँ सेम ऐसे ही। सो अभी ये कैसे होगा, आई विल टेक ओवर हियर मिथाइल बेंजीन प्लस ClCl लिया इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशंस, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी हाइड्रोनियम आयन ऐड किया H3O प्लस, और टेम्परेचर रखा है 373 केल्विन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो गया। इन सबसे आपको क्या कंक्लूजन समझ में आया? व्हाट यू हैव कंक्लूडेड, बोलो। We have prepared Same product. डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ ना, मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। Yes, miss. अभी ये जो रिएक्शन था ना, पहला स्टेप, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था इटार्ड। तो उसका नाम, उस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। जो दूसरा वाला है वो बस ऐसे ही बना दिया था किसी ने, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस ऑल्सो। एंड थर्ड, ये वाला जो है, इट इज अ कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड मतलब बहुत अच्छा यील्ड देता है, तो इट इज कमर्शियली यूज्ड मेथड, समझा? अभी अभी इस रिएक्शन को लिखा कैसे है, देखो इटार्ड रिएक्शन को, मतलब देखो फाइनल कंक्लूजन, आपको एग्जाम में इतना सब झंझट करने की जरूरत है। मिथाइल दिखा और तीनों में से कौन सा भी रिएजेंट दिखा, धड़ाम से उसको एल्डिहाइड बना देने का, खत्म। ज्यादा सोचते नहीं बैठने का, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन लिखा कैसे है, देखो मैं पहले बताती हूँ व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। इसके बीच वाले सारे इंटरमीडिएट इन सबके साथ, they have written over here this CHH methyl benzene है, this is my Cr2Cl2 chromyl chloride, कार्बन डाइसल्फाइड। देखो रिएक्शन कैसे आ जाएगा, अभी ये C ऊपर वाला H ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर ऐड करेंगे, अरे यार जगह ही छोटी हो गई, नीचे लिखूं क्या, इधर लिखती हूँ, ठीक है। CH, यहाँ पे क्या ऐड किया है, CrOHCl2, दिस इज ऑल्सो CrOHCl2, और फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इट विल गिव यू डायरेक्टली CHO, मतलब वो इसमें यूज हो जाता है। तो ये जो है ना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो Cr, ठीक है। फिर O एक ले लिया और H ले लिया, आ गया OH NCl2। फिर वापस से क्या लिया, Cr, फिर एक O ले लिया
एक H के साथ गया OH Cl2, ये आपका इंटरमीडिएट है, समझा? इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या था? ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, बस। क्लियर एवरीबॉडी? सो इफ आई बस आस्क एक व्हाट बार इज रिपीट इटार्ड कर। रिएक्शन, क्या रिपीट करूं? विच पार्ट? दिस पार्ट। हाँ, विच पार्ट? द सेम पार्ट। ये देखो, ये क्या था? ये सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाया। दिस इज और chromium complex, so this is Cr. this Cr will go and join with this H, तो ये O है, H के साथ ज्वाइन हो गया OH, और Cl2 वैसे ही लिखा, Cr ऐसे ही लिखा, ये O जाके H के साथ ज्वाइन हो गया, Cl2 ऐसे ही लिखा। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और फाइनली ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑन हाइड्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, समझा? अभी देखो इटार्ड रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा? व्हेन, इसको बोलते हैं मिथाइल अरीन ऑल्सो। नहीं, यहाँ पर कौन सा भी अल्काइल ग्रुप होगा, एनी अल्काइल ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द एल्डिहाइड, एनी अल्काइल ग्रुप, not only methane, not only ethane, not only propane, anything, any alkyl group can be converted into aldehyde directly। ये इसकी खास बात है, ठीक है? मैं क्या बोलूंगी, देखो, मिथाइल बेंजीन on oxidation with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide forms chromium complex, which on further hydrolysis gives benzaldehyde. This reaction is known as इटार्ड रिएक्शन। वापस से रिपीट करती हूँ, मिथाइल बेंजीन on oxidation with chromyl chloride, on oxidation with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide forms chromium complex, which on further hydrolysis gives benzaldehyde. This reaction is known as इटार्ड रिएक्शन। कौन करेगा? एक मिनट, मैं बोलती हूँ। सानिका will repeat. सानिका, define इटार्ड reaction. सानिका, are you there? जो लोग एक बार बोलने पर आंसर नहीं करेंगे, मैं उनको रिमूव करूंगी ग्रुप में से। फोन रख के यहाँ वहाँ घूमने का नहीं। See, she left also. मैम एक बार वापस रिपीट करो ना। What is this? What this is called? बोलो। What is the name of that compound? Hello. मैम कौन सा कंपाउंड? कौन सा मिथाइल कंपाउंड? ये methyl benzene. टोलुइन। It is treated with what? Chromyl chloride. In the presence of what? Carbon disulfide. What it will give you? Chromium complex, which on further hydrolysis gives you benzaldehyde. क्या difficult है इसमें? समझा? You can write down toluene also, you can write down methyl benzene also. Clear? मिस, हाँ मैं समझा। हाँ, समझा? चलो अभी कौन आंसर करेगा? तन्वी। तन्वी, what is इटार्ड रिएक्शन? अभी सानिका को नेक्स्ट लेक्चर में आने मत बोलना। Inform her that she is not allowed to attend my next lecture. What's her surname? Sanika Shirsat, na? Tanvi, are you there? Tanvi Umane, are you there? I will remove, हाँ, मेरे को आंसर्स नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तन्वी, are you there or not?
Shrutika. Shrutika. Yes, miss. Please repeat. What was the definition of Itard reaction? Methyl benzene. Methyl benzene. Benzene is oxidized by oxidation agents. Chromine, chromine, chloride is Chloride. carbon diffused as solvent to form a chromium complex, which the corresponding benzene halide is obtained. Acid hydrolysis is called as ether reaction. Okay, good. Methyl benzene on oxidation gives, in the presence of carbon disulfide, gives you chromium complex, which on further hydrolysis gives benzaldehyde. Very good. This is called as Itard reaction. Very good. चलो लिखो, सब लोग हेडिंग लिखो फटाक से. Preparation of aromatic aldehyde from hydrocarbon. Preparation of aromatic aldehydes from hydrocarbon. In that first part लिखना Itard reaction. This is the first part. Itard reaction. लिखो मिथाइल बेंजीन और टोलुइन, जो लिखना है लिखो. मिथाइल बेंजीन और टोलुइन on oxidation with chromyl chloride, on oxidation with chromyl chloride in presence of carbon disulfide, in presence of carbon disulfide, form a chromium complex, form a chromium complex, which on further hydrolysis form a chromium complex, which on further hydrolysis gives formation of benzaldehyde, gives formation नीचे एक of बार repeat. benzaldehyde. फर्दर हाइड्रोलिसिस Methyl के बाद benzene on oxidation with chromium chloride in presence of carbon disulfide form chromium complex, which on further hydrolysis gives benzaldehyde, which on further hydrolysis gives benzaldehyde. This reaction is known as Itard reaction. This reaction is known as Itard reaction. चलो कॉपी करो. हो जाएगा तो बोलो. हाँ, थोड़ा कैमरा ऊपर करो ना.
हो जाएगा तो बोलो। हाँ, डन। हाँ, ऊपर का लिखवाती हूँ, कैसे लिख जाओ। ये तो मैंने बस बताया कि कैसा है। अभी इन सब के बीच के रिएक्शंस बाकी है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिखाया। सेकेंड पार्ट ये लिखेंगे, उसका बीच का रिएक्शन, देन थर्ड पार्ट। फर्स्ट हो गया सबका। चलो अभी इसी में आएगा सेकेंड पार्ट। टर्न करूँ क्या? पेज हो गया सबका? नहीं मिस रुको। हाँ फास्ट लिखा मैम। करो जरा बच्चों। लिखो यश, फास्ट लिखो। हो गया? बहुत टाइम पास कर करके लिखते हैं यार तुम लोग, सच्ची में। यस मिस। हाँ चलो नेक्स्ट। अभी इसी में सेकेंड पार्ट। हाँ, क्योंकि हम लोग मिथाइल बेंजीन ही यूज करने वाले हैं ना। सो वी विल राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट। उसको बोलते हैं बाय ऑक्सीडेशन विथ CrO2, by oxidation of toluene using CrO3। सेम रिएक्शन है, खाली आपको बीच का कॉम्प्लेक्स लिखना है। दिस इज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन। वी विल राइट डाउन क्रोमियम क्लोराइड प्लस CH3CO ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। टेम्परेचर 273 to 283 केल्विन। इसका ये देखो कॉम्प्लेक्स, देखो क्या आएगा। CH, यहाँ पे देखेंगे OCO CH3, और ये भी हो जाएगा OCO CH3। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। और बाद में करने का क्या है, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर देने का, H2H3O प्लस। क्या मिल जाएगा अपने को? बेंजाल्डिहाइड। बस इतना ही है रिएक्शन। समझा क्या? ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड भी लिख देती हूँ। देखो फाइनल क्या है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बस इतना ही है मेरा ध्यान में। थर्ड वाला है क्लोरीनेशन, बाय क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। चलो ले लिया अभी मैंने टोलुइन CH3। दिस इज माय टोलुइन। Do the chlorination in presence of UV radiations। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट? CHCl2, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। एक्चुअली बेंजाइल है वो, बेंजाइल क्लोराइड है वो। और वापस से इसका हाइड्रोलिसिस करो, H3O प्लस एट 373 केल्विन। ये हो गया मेरा बेंजाल्डिहाइड। बस खत्म हो गया रिएक्शन। समझा? और ये कौन सा मेथड है? दिस इज योर कमर्शियल मेथड। समझा? तो सभी केस में मिथाइल का क्या बन गया? कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसका क्या बन गया अपना? टोलेन सॉरी बेंजाल्डिहाइड बन गया। इतना लिख और लो, मिस यहाँ आज के पर लिए टू इतना एच सी काफी एल है। आएगा ना बाय प्रोडक्ट थर्ड वाले में। हाँ हाँ, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाय प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है अपने को। बाय प्रोडक्ट आप छोड़ दोगे तब भी चलेगा। ये देखो ना, ये देखा जाए तो कितनी सारी चीजें है यहाँ पे, देखो कितनी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट आनी चाहिए। लिखा है कुछ, कुछ नहीं लिखा है, वो सब निकल जाता है बाहर, उड़ जाता है सब कुछ।
टुमारो वी विल स्टार्ट विद गेटरमैन कोश रिएक्शन. कल करेंगे ये. यहाँ तक सबको समझा अच्छे से? वी आर ऑन पेज नंबर 262. एनी क्वेश्चन सो फार? अगर ये हो गया जल्दी तो गेटरमैन कॉश भी पढ़ा देती हूँ. इजी है वैसे, वो भी एक ही लाइन में है. हो जाएगा तो बोलो. हाँ बच्चों, एनी क्वेश्चन सो फार? आज जो भी सिखाया, 2 ही पेज सिखाया मैंने आपको. देखो 2 क्या, मेरे को लगता है 1 ही पेज सिखाया. नहीं नहीं, 2 पेज सिखाया. नेक्स्ट पूरा वीक जाएगा अपना ये चैप्टर में. ये होने के बाद है ना थोड़ा इजी चैप्टर लेती हूँ, फिर बाद में माइंस लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने पेपर में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े. इजी था ना इसको पेपर में? यूवी के लिए वो सिंबल होता है क्या? हाँ, एच न्यू होता है, उसको न्यू बोलते हैं. नहीं ना, वो ऐसा है एक्चुअली, एच न्यू रहता है वो. फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम एच न्यू. कुछ Yes. लोग उसको ऐसे वी जैसा भी लिखते हैं. ये सब रिएक्शंस मुझे बाय हार्ट चाहिए. हाँ, जैसे ही प्रेपरेशन खत्म होगा सेम डे आपका टेस्ट रहेगा. मैं आपको इंटीमेशन दे दूंगी कि कब खत्म हो जाएगा आपका प्रेपरेशन, वैसे ही आपका टेस्ट रहेगा और वो मार्क्स आपके पेरेंट्स को जाएंगे. हाँ, मिस कौन से चैप्टर पे? ये प्रेपरेशन. जैसे मैंने प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ा, अभी जैसे आईयूपीएससी सिखाया उसका टेस्ट ले लिया. फिर प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे, उसका टेस्ट दे दो. फिर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे, उसका टेस्ट दो. सिंपल सिंपल टेस्ट, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का. कब भी होगा फिर हम मिस? लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, जैसे ही प्रेपरेशन खत्म होगा वैसे. अभी हम लोग पेज नंबर 262 पे 264 तक प्रेपरेशन है, तो समझो एक लेक्चर और जाएगा प्रेपरेशन में, 1 या 2 लेक्चर. उसके बाद आपका प्रेपरेशन के ऊपर टेस्ट होएगा. सिंपल टेस्ट 10 मार्क्स का, एमसीक्यू टाइप्स, ओरल क्वेश्चन जैसा. एक एक वर्ड में आंसर लिखना है, सिंपल सा रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है, ऐसा. फिर शाम को नहीं है टेल आप लोग का लेक्चर ना, क्योंकि सर ले रहे हैं ना फिजिक्स का लेक्चर, सो आई एम नॉट टेकिंग. अगर सर का कैंसिल हुआ तो बोल देना केमिस्ट्री लगाने के लिए. डन एवरीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? कोई ऐसा पार्ट, कोई वर्ड जो नहीं समझ में आया? एनी क्वेश्चन, एनी लाइन? सी बच्चों, यू कैन रीड योर टेक्स्ट बुक एकदम शांति से, आराम से. कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क. सिखाओ क्या गेटरमैन कॉश रिएक्शन के नेक्स्ट टाइम में सिखाओ. यानी तो मेरा नेक्स्ट ही लिख टाइम के होगा, तुम लोग का लिख के नहीं. ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, ओके ओके, कॉलेज लेक्चर है. ठीक है, चलो. कुछ पूछना नहीं है ना किसी को? ओके. अभी सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो, चैट बॉक्स में आ जाओ सब लोग फटाक से.
What is the reagent used in Stephen reaction? Name the reagent used in Stephen reaction. Name the reagent used in Stephen reaction. चलो इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे बिना बोले अगर कोई भी लीव करेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेने वाली नहीं हूँ. टेल सानिका not to come for the further lectures. Name the reagents used in the Stephen reaction. Okay, very good. ठीक है. What is the full form of D by H? What is the full form of D by H? H भूल गए दिवेश लिखना. हाइड्राइड. Yes, correct. Very good. Very good. चलो सबका सही आंसर है. आज का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि हाँ, which reagent is used in the Itard reaction? Which oxidizing agent we are using in the Itard reaction? नहीं, वो solvent है कशिश. CS2 is a solvent. Oxidizing agent क्या था? हाँ बराबर. Correct. Very good दिवेश. Very good हेली. Very good प्रगति. CS2 solvent है जो dissolve करने के लिए use होता है. Correct. It is chromyl chloride. शाबाश. ठीक है. चलो समझ गया ना सबको. अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे गैटरमैन कॉश रिएक्शन. लिख के रखो नाम खाली, मैं भूल नहीं जाऊं. गैटरमैन कॉश. गटरमैन उसका नाम नहीं है, उसका नाम गैटरमैन है. तो सब लोग गटरमैन गटरमैन बेचारे को बोल दे. गैटरमैन कॉश रिएक्शन. खुशिश कितना हंस रही है देखो. उसके मम्मी पापा ने रखा है, अभी कुछ कर नहीं सकते. गैटरमैन कॉश रिएक्शन. ठीक है. पेज नंबर 262 मुझे याद दिलाना. ठीक है. चलो, see you tomorrow now. Bye bye. Take care everybody. Bye, mate. Welcome. Bye bye. Bye.